پیدائش 24واں باب۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے، جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا، کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپوتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹ کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ، میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں۔ سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکہ جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بتیول سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی، اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ اور وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بیتیول کی بیٹی ہوں، اور ملکہ کا بیٹا ہے جو نحور سے اس کے ہوا۔ اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے، اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔
तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम न रखा और मुझे खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रबेका का एक भाई था जिसका नाम लाबन था। वो बाहर पानी के चश्मा पर उस आदमी के पास दौड़ा गया, और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रबेका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा था। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। पस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊंटों को खोला और ऊंटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने के लिए पानी दिया, और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान न कर लूं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूं, और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है, और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई, उससे एक बेटा हुआ, उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कैनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से ना ब्याहना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना न चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हुजूर मैं चलता रहा हूँ, अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफर मुबारक करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे खानदान में जा पहुंचेगा, तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दें, तो भी तू मेरी कसम से छूटा। सो मैं आज पानी के उस चश्मा पर आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफर को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है, तो देख मैं पानी के चश्मा के पास खड़ा होता हूँ, और ऐसा हो कि जो लड़की पानी भरने निकले और मैं उससे कहूँ कि जरा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी, और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर दूंगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावंद ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रबेका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मा के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, जरा मुझे पानी पिला दे। उसने फौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा, पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊंटों को भी पिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बैतूएल की बेटी हूँ। वो नहूर का बेटा है जो मलाका से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए, और मैंने झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा, जिसने मुझे ठीक राह पर चलाया कि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते ले जाऊं। सो अब अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ
पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाईं तरफ फिर जाऊं। तब लाबान और बेतूएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रबेका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा, और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकालकर रेबेका को दिए, और उसके भाई और उसकी मां को भी कीमती चीजें दी। और उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया और रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रेबेका के भाई और मां ने कहा कि लड़की को कुछ रोज, कम से कम 10 रोज हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया है। मुझे रुखसत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसकी दाया और इब्राहिम के नौकर और उसके आदमियों को रुखसत किया, और उन्होंने रेबेका को दुआ दी और उससे कहा, ऐ हमारी बहन, तू लाखों की मां हो, और तेरी नस्ल अपने कीना रखने वालों के फाटक की मालिक हो। और रेबेका और उसकी सहेलियां उठकर ऊंटों पर सवार हुईं और उस आदमी के पीछे हो ली। सो वो आदमी रेबेका को साथ लेकर रवाना हुआ, और इसहाक बेरलही रोई से होकर चला आ रहा था, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया, और उसने जो अपनी आंखें उठाईं और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट पर चले आ रहे हैं। और रेबेका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी, और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुरका लेकर अपने ऊपर डाल लिया। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया। तब इसहाक रेबेका को अपनी मां सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रेबेका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की, और इसहाक ने अपनी मां के मरने के बाद तसल्ली पाई।